यूनियन लॉ मिनिस्टर एक्सेप्टेड recommendations to establish regional benches of Supreme Court. इस टॉपिक को हम लोग यूपीएससी मेंस के सेक्शन में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, जुडिशियल सेक्शन के अंदर. दैट इसको हमने एक दिन पहले भी क्लास में डिस्कस किया था. दैट इज इंडिया में सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, एंड इट इज सेड दैट मोस्ट ऑफ द केसेस जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं दे बिलोंग्स टू नॉर्थ इंडिया एंड द सराउंडिंग एरियाज ऑफ दिल्ली. राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, बट उसके नीचे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला और नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचते. इसका मतलब ये है कि जस्टिस हाई कोर्ट तक है और हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट तक लोग नहीं पहुंचते. और ये मेंस में हम लोग कई बार इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं. देन इट वाज डिमांड, बहुत पुरानी डिमांड है, that the benches of Supreme Court should be established in different parts of the country. One is at East, Gujarat में, then one is at South, then one is at Central India और North East. So the demand जो है उसके ऊपर बहुत consider किया, लगा कि नहीं, तो justice की सही definition which is mentioned in the preamble of Indian Constitution, that should be given to every individual. Justice should be given to every individual and everybody has a right to get the justice from Supreme Court even. So if it is accessible, then there is possibility that anybody can reach to Supreme Court for the demand of his rights or specifically the fundamental rights. So because the appeal can be filed only in Supreme Court in case of fundamental rights. So that is the point. तो ये demand काफी लंबे टाइम से थी. तो this is the news today that Union Law Ministry has accepted recommendations proposing the establishment of regional benches of the Supreme Court. The Parliamentary Standing Committee on Personal Public Grievance Law Justice convened this information to Parliament through 133rd report in judicial reforms. As we know that कि हाई कोर्ट्स की भी बेंचेस होती हैं. जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो एक बेंच है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में लखनऊ हाई कोर्ट की बेंच जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैठती है, इलाहाबाद में बैठती है. इट मीन्स इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ हाई कोर्ट, तो यूपी के पास ऑप्शन है. ठीक, तो वन इज बेंच. तो इसी तरह से बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट की भी बेंच हो सकती है, पॉसिबिलिटी है. एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑफ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 130 द सुप्रीम कोर्ट इज मैंडेटेड टू सिट इन दिल्ली और एनी अदर लोकेशन और लोकेशंस डेजिग्नेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सब्जेक्टेड टू द प्रेसिडेंट्स अप्रूवल. चीफ जस्टिस करेंगे और प्रेसिडेंट का अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा. Then the standing committee's 133rd report outsides recommendations regarding the creation of regional benches. Supreme Court is powered to utilize Article 130 to institute regional benches in 4 or 5 locations. तो 4 या 5 जगह पे सुप्रीम कोर्ट की लोकेशंस हो सकती हैं या उनकी बेंचेस 4 या 5 हो सकती हैं across the country. The suggested approach involves addressing the interpretation of the Constitution and the constitutional matters in Delhi, while regional benches would handle appellate matters with the decision of these benches being considered final. तो जो सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी होगी वही सुप्रीम कोर्ट की बेंच की भी अथॉरिटी होगी. इट मींस एक सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में और बाकी उसकी बेंचेस जो है इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में होगी, और वो फुल स्ट्रेंथ बेंच होगी या बेंच का साइज क्या होगा, इट विल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट और जो भी आगे उनके पास अथॉरिटीज होंगी, यूनियन लॉ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट. The establishment of regional benches aim to enhance access to justice, which is the main point, access to justice, fundamental right, by bringing justice closer to the common citizen, reducing litigation cost, overcoming language barrier and more. Additionally, it is seen a potential solution to alleviate the burden of judiciary by segregating constitutional matters from the appellate matters. तो दिस इज द इशू कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास एक बहुत ज्यादा बर्डन काम करने का काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, रीजनल बैरियर्स खत्म हो जाएंगे, लैंग्वेज बैरियर्स खत्म हो जाएंगे. तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज बेनिफिशियल फॉर द implementation of Indian Constitution. So, however, challenges associated with the regional benches, अब issues रहेंगे, including the possibility of conflicting interpretations in the context of these recommendations. The Law Commission in its 29th report proposed a constitutional bench in Delhi to handle constitutional and related matters. Furthermore, it suggested the creation of 4 secession benches in the north, south, east, west regions to manage all appellate work specific to each region.
तो एक बेंच नॉर्थ में होगी, एक साउथ में, एक ईस्ट में और एक वेस्ट में, और उसके बाद एपीलेट जो वर्क्स हैं उसको वो खत्म कर सकती है। तो दैट इज द एस्पेक्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह से स्प्रेड हो जाएगा या सुप्रीम कोर्ट इस तरह से अपनी बेंचेस बना देगा, तो इसका मतलब है जस्टिस तक अप्रोच जो है कंपैरेटिवली इजी हो जाएगी। नाउ द पॉइंट इज, जम्मू कश्मीर में एक आदमी जो है शोपियां में रहता है, वहां से वो सुप्रीम कोर्ट अगर उसको दिल्ली पहुंचना है तो इट विल टेक अराउंड 2 days, उसको 2 दिन का काम है उसका, ठीक। तो वहां से पहले वो जम्मू, वहां से कश्मीर पहुंचेगा या कश्मीर से जम्मू पहुंचेगा, फिर जम्मू से एक लंबी ट्रेन करके फिर वो दिल्ली जाएगा, फिर वहां रहना खाना पीना ये वो सब बाकी सब खर्चे। इसके अलावा मान लो कि किसी को कन्याकुमारी में कोई पिटीशन फाइल किया, वो सुप्रीम कोर्ट आएगा तो उसको 2 दिन तो पहुंचने का रास्ता है। तो दिस इज द इशू कि इस करके अगर ये हो जाए तो इसका मतलब जस्टिस जो है वो अपने प्रीएम्बल की जो डेफिनेशंस हैं उसके अंदर वो पूरी तरह आ जाएगा, ठीक। बाकी देखो आगे चल के क्या होता है, इसके बाद कहाँ कहाँ स्टेब्लिश होती है।